Hare Krishna. Thank you everyone for coming for this Bhagavad Gita session. आप लोग में से कोई पहली बार आए? ओके. तो इस सेशन में एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी भगवद गीता लास्ट कितने मंथ से चल रहा है? 2-3 महीने से, राइट? 3-4 महीने मे बी, व्हाटएवर. तो ये कुछ महीने से चल रहा है हमारा ये भगवद गीता का सेशन. अभी करेंटली हम लोग 3rd चैप्टर में है. तो जो नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आई ट्राई टू मेक इट कि आप लोग रिलेट कर पाओ. क्योंकि ऑब्वियसली वी आर इन 3rd चैप्टर, बट एनीवे इट विल बी रिलेटेबल बिकॉज भगवत गीता जो है वो क्रीम की तरह है. कहीं से भी आपको स्वाद मिल जाएगा तो उसका टेस्ट कर पाओगे आप. बट हाँ, आइडियली हम लोग को शुरुआत से शुरू करना होता है, बट ठीक है, चलेगा. विल गेट टू नो समथिंग. आई विल ट्राई टू मेक इट प्रेजेंट इन अ वे सो दैट यू कैन रिलेट टू इट. सो ठीक है, start then. Okay, so today's verse is chapter 3 verse 29. आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, आप लोग मेरे बाद रिपीट कर सकते हैं. प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्. प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्. कोई रिपीट करना चाहेगा? कोई डिसाइड करना चाहेगा? प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्. Anyone else? माता जी. You can try, no problem. गलती होगी क्या? ओके, नो प्रॉब्लम. टाइम अप. ठीक है, मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. तो ठीक है, मैं इसको पॉपर्ट को भी पढ़ लेता हूँ. Persons who are unknowledgeable falsely identify with gross material consciousness and are full of material designations. This body is a gift of the material nature, and one who is too much attached to the bodily consciousness is called manda, or a lazy person without understanding of spirit soul. Ignorant men, ignorant men think of the body as the self. They accept bodily connections with others as kinsmanship, the land in which the body is obtained as their object of worship, and they consider the formalities of religious rituals to be ends in themselves. Social work, nationalism, and altruism are some of the activities for such materially designated persons. Under the spell of such designations, they are always busy in the material field. For them, spiritual realization is a myth, and so they are not interested. Those who are enlightened in a spiritual life, however, should not try to agitate such materially engrossed persons. Better to prosecute one's own spiritual activities silently. Such bewildered persons may be engaged in such primary moral principles of life as non violence and similar materially benevolent work.
Men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore, Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valuable time. But the devotees of the Lord are more kind than the Lord because they understand the purpose of the Lord. Consequently, they undertake all kinds of risks, even to the point of approaching ignorant men to try to engage them in the acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for the human being. तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस श्लोक में एक्चुअली बात हो रही है कि भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, कि मूढ़ा, मूढ़ा मतलब पता होगा आप लोगों को क्या होता है मूढ़ा मतलब? एनीवन? मूर्ख। हाँ, तो मूर्ख यहाँ पे बोल रहे सम्मूढ़ा, मतलब और उसको बढ़ा के मतलब बोल रहे हैं सम्मूढ़ा। तो ये लोग जो मूर्ख लोग हैं उनको बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, क्योंकि मूर्ख लोग जो है वो पूरी तरह से मतलब बॉडी शरीर के लेवल पे पूरी तरह से आ सकते हैं। वो सब कुछ सोच रहे हैं कि सब कुछ, जैसे पिछले पिछले वर्ष में हमने देखा था, क्या था, किसको याद है पिछला वर्ष? किसी को याद है? कोई जो पिछले क्लास में था, एटलीस्ट श्लोक नहीं तो कम से कम ट्रांसलेशन याद है? 3.27 प्रकृतेर क्रियामानानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। यही था कि ये सब कुछ जो है एक्चुअली हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो वो सब कुछ सोचता है कि हम मैं ही कर रहा हूँ। वो सब अपने आप को समझ रहा है कि मैं ही एंजॉयर हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। बट हमने देखा था अकेले, एक्चुअली अकेले वो सब कुछ करने के सामर्थ्य उसमें नहीं है। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि बॉडी है जैसे हमारी, तो हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हमारा हाथ भी चल रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ, तो उसकी शक्ति जो है वो मुझे, मैं खुद जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी वो शक्ति कहीं से मिल रही है। मतलब मैं अकेले सक्षम नहीं हूँ ये सारे कार्य करने को। तो लेकिन जो प्रकृति गुण तो जो ये जो गुण से प्रकृति से मतलब क्या था, प्रकृति क्रिया माना नहीं गुण सर्मानी कर्म से अहंकार विमूढ़ात्मा। तो जो अहंकार बस हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है हम ही कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम ही एंजॉय कर रहे हैं, ईश्वर हो हम होगी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर मतलब मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ, सब कुछ बलवान मैं हूँ, मैं ही सुखी हूँ, सब कुछ वो अपने लेवल पे सोच रहे हैं। बट भगवत गीता हमको बता रही है सब कुछ एक्चुअली वो अकेला नहीं कर रहा है, उसके पीछे प्रकृति है, और भी एक्चुअली हमने देखा था और क्या फैक्टर्स। तो यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे कृष्णा उस चीज़ को फर्दर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऐसे मूर्ख लोग हैं जो समझ रहे हैं कि वो सब कुछ खुद से ही कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को वो बोल रहे हैं कि वाइज लोग जो होते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ही लो लेवल पे उनकी बुद्धि है, उनको डिस्टर्ब करेंगे तो वो समझेंगे नहीं और उल्टा बुरा हो जाएगा। तो ये किस लिए बोल रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड चैप्टर में जो है काफी कुछ एक्चुअली अर्जुन जो थे कंफ्यूज थे, ज्ञान और कर्म के लेवल पे बात हो रही थी कि अर्जुन को ये भी बोला था भगवान ने कि युद्ध करो, और दूसरी तरफ ज्ञान की भी बातें कर रहे थे, उन्होंने बोल रहे थे कि कैसे एक्चुअली ज्ञान के लेवल पे मतलब वैराग्य के लेवल पे और ज्ञान के लेवल पे बात चल रही थी कि जो मतलब सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपने आप में सेटिस्फाइड रहते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब बातें कृष्णा ने बताई थी अर्जुन को, और एक दूसरे तरफ युद्ध करने के लिए बोल रहे थे, तो अर्जुन कंफ्यूज थे कि भाई मुझे युद्ध करना है नहीं करना है, अगर ज्ञान अगर सर्वश्रेष्ठ है, कर्म से सर्वश्रेष्ठ, कर्म से श्रेष्ठ है, तो मुझे भगवान कर्म करने को क्यों बोल रहे हैं मतलब। तो ये इसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे एक्चुअली। तो यहाँ पे हाँ, तो मेरा ये जो टॉपिक है यहाँ पे एक्चुअली द डायलेमा ऑफ डिस्टर्बिंग पीपल, कि लोगों को डिस्टर्ब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भगवान जो है, भगवान बोल रहे हैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान तो क्लियरली बोल रहे हैं वाइज जो है शुड नॉट अनसेटल देम। लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद को तो आप लोग सब जानते हो, श्रील प्रभुपाद को तो जानते हैं आप लोग, कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? एनीबडी हु डजंट नो? or you don't know? Okay, so for your information of telling, so Srila Prabhupada is
the founder Acharya of this ISKCON, where we are sitting actually. So this ISKCON is coming under this uh, Brahma Madhva Gaudiya Vaishnav disciplic succession. मतलब ये knowledge जो है actually ये this is not something किसी ने अपने मन से नया कुछ knowledge create कर दिया. ये कृष्णा से knowledge आ रहा है, जो कि actually बोलते हैं कि चार अलग अलग वैष्णव संप्रदाय है. तो ये नॉलेज ये प्रॉपर जो संप्रदाय है जो इस्कॉन का, ये एक्चुअली ब्रह्मा के थ्रू, लॉर्ड ब्रह्मा आपने सुना होगा, उनके थ्रू नॉलेज फ्लो हो रहा है. फिर ये मध्वाचार्य और मतलब ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, जिसके थ्रू इसमें चैतन्य महाप्रभु भी, अगर आपने नाम सुना होगा, जिनकी डीटी भी आपने देखी होगी, गौरंग और नित्यानंदा, जो अपने राधा कृष्ण की डीटी जो देखी उनके राइट हैंड साइड में. तो ये उस चेन में ये नॉलेज फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पे हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद इज ऑल्सो कमिंग इन दैट लाइन. सो दिस नॉलेज कमिंग इन परंपरा, एंड प्रभुपाद इज ऑल्सो कमिंग इन दैट परंपरा. सो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि जो वाइज हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनको जो पूरी तरह से आसक्त है, मतलब जो इस तरह से है मूर्ख लोग, उनको अनसेटल नहीं करना चाहिए. मतलब उनको ये सब ज्ञान मत दो, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं समझ में आएगा, उनको ज़्यादा ज्ञान बचेगा नहीं उनको. बट यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि devotees of the Lord are more kind than the Lord because they understand the purpose of the Lord. Consequently, they undertake all kinds of risk, even to the point of approaching ignorant men to try to engage them in the acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for the human being. तो यहाँ पे प्रभुपाद एक तरह से देखो तो कृष्ण को काट रहे हैं. कृष्ण बोल रहे हैं कि उनको अनसेटल नहीं करना है, बट प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, हमें और उनको देना है उनको बताना है, अनसेटल करना है. इनफैक्ट आप प्रभुपाद के बहुत सारे कन्वर्सेशंस में देखोगे तो वो बोलते हैं इस तरह से कि नहीं, वी शुड एक्चुअली डिस्टर्ब दैम. तो ये इस तरह से क्यों चल रहा है? ये मतलब एक तरफ कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं करना है अनसेटल, और दूसरी तरफ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब करना है. तो हमको समझना पड़ेगा एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है, हरे कृष्ण, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो है, ये अर्जुन को जब दे रहे हैं भगवान, तो जैसे मैंने बताया ज्ञान और कर्म के लेवल पे चल रहा था. तो पहले का जो सिस्टम आप देखोगे, तो पहले के सिस्टम में लोग वैदिक कल्चर जो था उसमें रूल्स रेगुलेशन लोग फॉलो करते थे, धर्म का पालन करते थे, यज्ञ करते थे, धर्म का पालन करते थे. तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा था कि क्योंकि वो जो है उनकी जो स्थिति वो उस लेवल की नहीं है कि वो पूरी तरह से सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि वो कुछ तो कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो धर्म का, भले ही वो अपने अर्थ की प्राप्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो चलो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ तो कर रहे हैं. अचानक से उनको आप बोल दो, बड़े लेवल का नॉलेज दो, तो उनके लिए वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा. तो इसके लिए वो, तो एक तरह से वो जो इंस्ट्रक्शन था, वो एक्चुअली ये जो इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली, ये आप बोलो तो एब्सोल्यूट लेवल पे नहीं है, वो एक तरह से टैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है. टैक्टिकल को हिंदी में कैसे बोलेंगे? मतलब कभी कभी टेम्पररी कुछ काम करने के लिए हमको कुछ उपाय लगाना पड़ता है ना, तो वैसे ही ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ यही एक परम मतलब यही इंस्ट्रक्शन हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है भगवान, तो क्योंकि आ रही है दूसरा चीज यहाँ पे आ रहा है कि लिख रहा है कि डेवोटीज ऑफ जो लॉर्ड होते हैं वो ज्यादा, वो और भी भगवान से भी दयालु होते हैं. इसका मतलब क्या है? भगवान दयालु नहीं होते? नहीं, भगवान भी दयालु है, लेकिन भक्त जो होते हैं वो एक्चुअली भगवान का उद्देश्य क्या है उसको समझते हैं. तो ये जो मैंने बताया पुराने टाइम में एक्चुअली धर्म का पालन हो रहा है लोगों को, तो ठीक है, चलो थोड़ा एक होप है कि धीरे धीरे धर्म का पालन करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा. कभी ना कभी तो हो सकता है बात को समझ जाएंगे कि हाँ अल्टीमेटली हमको पूर्णतः भगवान को समर्पण करना है. बट अगर आजकल का टाइम आप देखोगे तो आजकल कुछ भी बिल्कुल धर्म पालन नहीं किया जाता आजकल. तो आजकल के लोगों का कैसे उद्धार होगा? क्योंकि धर्म मान ही रहे हैं, धर्म का पालन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है. कुछ यज्ञ वगैरह ये सब तो ऑब्वियसली आउट ऑफ पिक्चर है. मतलब हम देखते हैं किस तरह से डिमोनियक आसुरिक जीवन जीते हैं. तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आजकल के लोगों को कैसे समझाया जाए.
तो डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है समझाना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही सोया हुआ है, कोई मान लो उस पर कोई आपत्ति आ गई, उस पर कोई मान लो कोई उसको मारने आ रहा है, तो मुझे उसको बचाने के लिए चिल्लाना पड़ेगा, राइट? तो मैं अगर प्यार से उसको बोलूंगा, अरे उठो 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 उठ जाओ, जो भी उसका नाम है, राकेश, रमेश, जो भी, उठो उठो तुमको मारने आया, तो उठेगा क्या? नहीं उठेगा, उसको जोर से चिल्लाना पड़ेगा, अरे उठो, मतलब जोर से उसको गधा जो भी है इस तरह से बोलना पड़ेगा, तो ही उसका कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली वही चल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से भगवान देखो तो एक तरह से भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो वाइज हैं उनको अनसेटल नहीं करना चाहिए, जो वाइज लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, मूर्ख लोगों को छोड़ दो, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करो। तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि कृष्णा को अपने भक्तों की चिंता होती है। ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली किसके ऊपर लागू है वो भी समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम जब शुरुआती स्तर पे हैं, जब आप खुद भक्ति कर रहे हैं तो आपकी भक्ति खुद कमजोर है, आपकी खुद की जो फेथ है खुद कमजोर है। आप दूसरों को बताने जाओगे तो हो सकता है आपका खुद वो क्या बोलते हैं, वो आपको आपका फेथ तोड़ दे। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो उनको साइलेंटली अपनी अपना देखना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आप एक्चुअली आप करने जाओगे तो हो सकता है आपका खुद का विनाश हो सकता है, आपका खुद का जो कन्विक्शन है वो लूज हो सकता है। आप जैसे मान लो अभी कोई बहुत बड़े एथीस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, उनसे आप जाके डिफीट करने चले जाओ, वो ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट देंगे, आप लड़ ही नहीं पाओगे। या फिर कोई पूरी तरह से जो हार्डकोर मायावादी है, जो मतलब जो भगवान के आकार को नहीं मानते, पूरी तरह से मान रहे कि भगवान निराकार है, तो उनको आप वो वेदों का नॉलेज है, ज्ञान है उनको, उनसे आप बातें करने जाओगे तो आप उनसे नहीं जीत पाओगे। तो ये हमको समझना चाहिए कि भगवान ये किस स्तर पे बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान एक तरफ से ये बोल तो रहे हैं कि अर्जुन को कि नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन अगर आप देखोगे भगवान डिस्टर्ब नहीं करने की बात कर रहे हैं, मगर आप देखोगे तो भगवान खुद एक्चुअली अर्जुन को शुरुआत से ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। शुरुआत ही वो स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, प्रज्ञावादांश भाष्य से। क्या है वो श्लोक, किसी को याद है? एनीबॉडी रिमेंबर्स? क्या हो रहा है? एक सेकेंड। ओके, सो सॉरी। हाँ, तो हम देखते हैं कि अर्जुन सॉरी भगवान जो है खुद एक तरफ तो बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब नहीं करने को, और लेकिन हम देख रहे हैं कि शुरू से ही अर्जुन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, शुरू से ही उसको बोल रहे हैं कि मूर्ख हो तुम, मतलब बातें कर रहे हो बड़े बड़े विद्वान वाले, आप बड़े बड़े विद्वान वाली तुम बातें कर रहे हो, बट एक्चुअली तुम मूर्खों की तरह बिहेव कर रहे हो, है ना? तो और इस श्लोक में भी आप देखो तो इस श्लोक में भी वो एक्चुअली क्या क्या यूज हो रहा है यहाँ पे। अरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? वो इस श्लोक में भी क्या बोल रहे हैं? सम्मूढ़ा, सम्मूढ़ा मीन्स मूढ़ा, मूर्ख बोल रहे हैं। अकृत से न विदो मीन्स जो अज्ञानी लोग हैं, एक ज्ञानी लोग हैं, मतलब इस तरह से कौन बोलता है? मतलब खुद एक तरह से देखो तो वो पूरे भगवत गीता में आप देखो तो वो ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, मूढ़ा, जो क्या बोलते हैं, माया पृथज्ञाना, नमाम दुष्कृति ना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, इस तरह से वो नराधम है, जो मूर्ख है, दुष्ट है, इस तरह से वर्ड्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी अकृत विदो मतलब, कृत विदो मतलब जिनके पास नॉलेज है, अकृत विदो मतलब जो ज्ञानी है। तो लेजी है, मंदान, आलसी लोग बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन दूसरी तरफ खुद भगवान देखो तो भगवत गीता में ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं, पूरा फुल ऑफ भगवत गीता में आप देखो तो ये पूरा ये सब ये वर्ड यूज हो रहा है। तो और अर्जुन को भी हम देख रहे हैं कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अगर आप पूरा स्क्रिप्चर्स देख लो, आप कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? ओके, नहीं मुझे लगा आवाज तो कुछ एको तो नहीं हो रहा था। ओके, तो अगर शास्त्रों में भी आप देखोगे, श्रीमद् भागवतम ले लो, शास्त्र पूरा ले लो, तो बहुत ही हैवी हैवी लैंग्वेज सब यूज किया हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये जो पर्पट मैंने पढ़ा,
आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली कि दिस बॉडी इज अ, सॉरी मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ कि पर्सन्स जो अननॉलेजेबल है दे फॉल्सली आइडेंटिफाई विद ग्रॉस मटेरियल कॉन्शियसनेस एंड फुल ऑफ मटेरियल डेजिग्नेशन। ये जो बॉडी है मटेरियल नेचर का गिफ्ट है, एंड जो बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं शारीरिक स्तर पे, देहात्म बुद्धि जिनकी होती है, वो एक्चुअली मंद है, लेजी पर्सन है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिट सोल। ऐसे जो इग्नोरेंट मैन है, जो समझ रहे हैं अपने आप को कि वो शरीर है, वो उनको लगता है कि जो शरीर से रिलेटेड जो भी उनके सगे संबंधी वो उनके अपने हैं, और जिस भी जमीन पे जहाँ पे भी वो पैदा हुए हैं वो वर्शिपल है, जस्ट बिकॉज वो वहाँ पे पैदा हुए हैं तो उसको वो पूजनीय समझते हैं। और रिलीजियस जो धार्मिक जो रिचुअल्स हैं उनको समझ बस लगता है कि एक फॉर्मेलिटीज है, वही बस, जैसे आप देखोगे हिंदूज लोग को जो है वो रिचुअल फॉलो करते हैं, बस उसके पीछे का मीनिंग नहीं पता है, बस वो बस करना है, उसके क्यों करना है नहीं करना है वो पता नहीं है, बस करना है। और ये जो सोशल वर्क है, समाज सेवा, देशभक्ति, अल्ट्रुइज्म मतलब लोगों का हेल्प करना, जो ये सब जो है ये सब उनका काम रहता है। तो ये लोग जो है पूरी तरह से बिजी रहते हैं, लेकिन एक्चुअली इनको क्या बोला जा रहा है, एक्चुअली आप देखो एक मैंने श्लोक भी ये पढ़, तो ये भागवतम का एक श्लोक है, इसमें ऐसे लोग जो हैं एक्चुअली, ऐसे लोगों को बोला जा रहा है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो अपने देशभक्ति की बात कर रहे हैं या फिर गरीबों की सेवा की बात कर रहे हैं या फिर जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, एक्चुअली एक्चुअली ये लोग जो हैं ये दे आर नो बेटर देन अ काउ और एन एस। तो अगर शास्त्र आप देखोगे तो इतना हैवी वर्ड यूज करता है, ये सब क्यों यूज कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने के लिए एक्चुअली, बिना डिस्टर्ब किए अगर हम समझेंगे कि एक्चुअली तो बिना डिस्टर्ब किए काम एक्चुअली चलेगा नहीं एक्चुअली। तो ऑल्दो शास्त्र, हाँ एक चीज ये भी था, एक हाँ सॉरी, एक ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं कोट करना चाह रहा था, यहाँ पे भगवत गीता में एक जगह एक और चीज आती है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय याभ्यास न चैवम वांग्मय तप उच्यते। कि हमें जो कैसा बोलना चाहिए, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग इन स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रुथफुल प्लीजिंग बेनिफिशियल एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स एंड ऑल्सो इन रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो कि सत्य हो, प्रिय हो और लाभदायी हो, और दूसरों को एजिटेट ना करे, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, और रेगुलरली वैदिक लिटरेचर जो है, शास्त्र है जो, उसके हिसाब से बोलना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि शास्त्र भी मतलब एक तरफ से ये रेकमेंड कर रही है कि हमको ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो कि प्रिय हो, लोगों को डिस्टर्ब ना करे, बट एट द सेम टाइम ये भी बोल रही है कि सत्य बोलना है। तो सत्य बोलते हुए हम, सत्य बोलना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अभी अभी मान लो आप ऐसा इस तरह की बातें हम यूज करेंगे कि ये कि भाई किसी को, नास्तिक लोग हैं इस तरह से मगर बोलेंगे, अभी मान लो कोई बहुत बड़ा देशभक्त है और हम उसको मुंह पे बोल देंगे तुम तो मूर्ख हो, तो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लेकिन अभी सच भी तो बोलना है, ऐसा तो नहीं कि उसको झूठ बोल सकते हैं, सच भी बोलने को बोला जा रहा है, डिस्टर्ब भी नहीं करने को बोला जा रहा है। तो बड़ा मुश्किल दुविधा है नहीं। तो क्या करना चाहिए हमको, डिस्टर्ब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करें, समन्वय कैसे करें? अभी जैसे आप लोगों ने ये सब सुना कि इसमें से किसको ये सब चीजें सुन के डिस्टर्बिंग लगा, किसी को डिस्टर्बिंग लगा ये सब सुन के, या आप लोग ने सबने एक्सेप्ट कर लिया ये सब सही है? अभी जैसे ये जो पढ़ा मैंने, वन हु आइडेंटिफाइज हिज सेल्फ एज द inert body composed of mucus, bile, and air, who assumes his wife and family are permanently his own, who thinks an earthen image or the land of his birth is worshipable, and who sees a place of pilgrimage as merely the water there, but who never identifies himself with, feels kinship with, worships, or even visits those who are wise in spiritual truth. Such a person is no better than a cow and ass. तो मतलब आप लोगों में से कितने लोग देशभक्त हैं? आप लोगों से कितने लोग अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही प्यार करते हैं?
और अगर किस तरह से तुम मूर्ख हो, तुम क्या इतना अपने उनको अपना समझ रहे हो, बट वो तो परमानेंट है नहीं तुम्हारे। तो आप लोगों को कुछ डिस्टर्बिंग, किसी को डिस्टर्बिंग नहीं लगा? थोड़ा थोड़ा लगा? लगा, बट आपको क्या लगता है ये हितकारी, बेनिफिशियल है? ओके, बट ये आपको लग रहा है बाय, थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हैं कि बेनिफिशियल है, मतलब ये जानना? क्यों? नहीं, बट फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यों, क्यों मूर्ख बोला जा रहा है? क्यों मूर्ख बोला जा रहा है? क्योंकि वो शरीर से संबंधित जो कुछ भी है उसको अपना मान रहे हैं। पहली बात भगवत गीता में ये आती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल तेल और पानी ले लो। ठीक है, तेल और पानी को आप मिक्स करो, तो तेल और पानी मिक्स होता है क्या? वो दोनों अपनी आइडेंटिटी अलग रहती है उसकी, मिक्स नहीं होता है। तो वैसे ही शरीर और आत्मा है, उसको आप, आत्मा और शरीर अभी मिक्स है, बट एक्चुअली वो अलग है। आत्मा को कोई लेना देना ही नहीं है शरीर से, कोई लेना देना नहीं है। तो आपके शरीर से संबंधित जितनी भी सच्चाई है, जितनी भी आप सच्चाई समझ रहे हो, मेरा देश, मेरे माता पिता, या फिर जो भी हम समझ रहे हैं एक्चुअली, वो एक्चुअली असत्य है, वो मतलब क्षणिक है एक्चुअली, वो रियल ट्रुथ नहीं है। तो तो ऐसे लोग जो सोच रहे हैं कि उसको पूरा अपना मान के बैठे हुए हैं कि मेरे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि अगर उनको कोई थोड़ा सा भी, उनको अगर ये प्रीच करने की कोशिश करता है भगवत गीता की फिलॉसफी, या फिर कुछ भी ये थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान देने की कोशिश करेगा, तो वो उनको लगने लगता है कि अरे ये थोड़ा ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरी अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी, मेरा भी परिवार है, मुझे बच्चे देखने हैं, पत्नी है। भाई मैं नास्तिक आदमी नहीं हूँ, मैं भी मानता हूँ भगवान में। क्यों बैठ के मुझे इतना डिस्टर्ब करने में लगे? क्यों मुझे, मैं सोया हूँ आराम से, लाइट ऑफ करके मैं मूवी देख रहा हूँ, लाइट ऑन कर दिया, डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब वो, जैसे मूवी देखते हैं तो कैसे हम एनग्रॉस रहते हैं, मतलब थिएटर में मान लो मूवी देख रहे हैं, होता है ना, थिएटर में मूवी देख रहे हो आप, लाइट ऑफ है, आप पूरी तरह से एनग्रॉस्ड हो, आप एकदम आराम से आनंद ले रहे हो मूवी का, आप एकदम मूवी में खो गए हो आप। जैसे जैसे मूवी में चल रहा है उसके हिसाब से आपके इमोशंस चल रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। तो तारे जमीन पे मूवी आई थी, किसने किसने देखी है? कौन कौन रोए थे उसमें? तो मतलब इतना ज्यादा, मैं भी रोया था, मुझे भी याद है बहुत पहले। तो इतने ज्यादा हम इनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि हम मतलब इतना आइडेंटिफाई करने लगते हैं उस कैरेक्टर से कि हम रोने लगते हैं, हम रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। मतलब हमारे चेहरे की एकदम मुस्कान आ रही है, कभी रो रहे हैं, सारा इमोशंस चल रहा है। तो मूवी अगर उसी में कोई लाइट ऑन कर देता है, या फिर मूवी मान लो थोड़ी देर के लिए रुक गई, कुछ तो टेक्निकल, तो गुस्सा आता है, अरे मूवी चलाओ, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुरंत से हल्ला करने लगते हैं थिएटर में लोग। तो वैसे ही होता है लोगों के साथ। अगर वो देख रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली शरीर से संबंधित जो भी उनके रिश्ते हैं, नाते हैं, उनके बारे में अगर उनको क्वेश्चन किया जाए, उनको बोला जाए, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे यार, मेरी जिंदगी में एंजॉय नहीं करने दे रहा है, काय को इतना ज्ञान लेके आ रहा है बीच में? तो यहाँ पे एक्चुअली भगवत गीता में यही, भगवान यही बोल रहे हैं एक्चुअली, कि मत डिस्टर्ब करो उनको ले। वो खुश है अपने लाइफ में, वो धीरे धीरे हो सकता है वो सीख जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कब सीखेंगे? जब धीरे धीरे वो जो अपने इंद्रिय की तृप्ति भी अगर वो कर रहे हैं, अगर वो नियम का पालन करते हुए करेंगे, तब तो उनका कुछ हो सकता है। बट वो नियम का पालन भी नहीं कर रहे हैं, बस उनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बुलाता है। बट आजकल क्या हो गया, सिर्फ अर्थ हो गया है, न धर्म चाहिए, न, सॉरी, अर्थ और काम चाहिए। अर्थ चाहिए, धन, धन अर्थ मतलब धन चाहिए, और काम, काम की तृप्ति चाहिए, धर्म से मतलब नहीं होता। और ना ही मोक्ष, मोक्ष तो पिक्चर में नहीं है, वो तो पता ही नहीं होता भी है कि नहीं। एक लाइफ मिली है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ये अभी फंडा है, ये मंत्र है। तो मतलब आंख बंद करके जीना चाहते हैं, कोई डिस्टर्ब करना चाहे तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे, इवन सो कॉल्ड आस्तिक लोग, सो कॉल्ड आस्तिक लोग भी, उनके पास भी जाओ तो वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो भी नहीं चाहते, भाई हमको इतना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, भगवत गीता को हम प्रणाम करते हैं, भगवान को मानते हैं, कृष्ण है, हम भी जानते हैं, हमने भी सुनी है उनकी कहानियां, हम भी जानते हैं उनकी लीलाएं, राम, भगवान राम की लीलाएं हम भी जानते हैं।
तो हम भी जानते हैं, हमको मत बताओ। तो ये हाल है एक्चुअली। तो डिस्टर्ब होना नहीं चाहते, लेकिन डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा। तो कलयुग में तो यही उपाय, क्योंकि कलयुग में वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो डिस्टर्ब करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आ रहे हैं कि इसके लिए आ रहा है यहाँ पे कि जो भक्त है भगवान के, वो एक्चुअली वो समझते हैं कि भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि हर कोई उनके पास आए। भगवान ऐसे क्या बोलते हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया अर्जुन को। इसके लिए मैं बोल रहा था, अर्जुन को ये बोल दिया कि डिस्टर्ब मत करो, इसका मतलब ये नहीं हमको मान लेना चाहिए कि एक अब्सोल्यूट इंस्ट्रक्शन हो गया, बस इसी को हमको मान के बैठे रहना है कि नहीं नहीं भगवान ने बोला है डिस्टर्ब नहीं करने, तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन भक्त एक्चुअली रिस्क लेते हैं। तो लेकिन अभी पॉइंट आता है कि रिस्क लेना है तो कैसे रिस्क लेना है और कौन रिस्क ले सकता है, वो सब सबको देखना पड़ेगा। तो एक और श्लोक आता है इस रिगार्ड में एक्चुअली, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है एक्चुअली, इसी चैप्टर में आगे आता है। 3.29 में डिस्कस कर रहा था, उसके उसमें मैंने ये श्लोक किया जस्ट फॉर रेफरेंस की शास्त्र कितनी हैवी है, वर्ड यूज करती है कि मूर्ख, गाय, और 1084:13 भागवतम, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि फायर जो है, फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज अ मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, और एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वूम, द लिविंग एंटिटी इज सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ दिस डस्ट। तो फायर और स्मोक एक साथ होता है ना, फायर के साथ स्मोक, मतलब बहुत ही सटल होता है बट कवरिंग होता है ना स्मोक। फिर मिरर के ऊपर आप देखते हो कि डस्ट लग जाता है, धूल लग जाती है। और एक कवरिंग बता रहा है एम्ब्रियो जो है, जो वूम के अंदर है, जो भ्रूण मतलब बोलते हैं, जो मतलब बच्चा जो होता है वो गर्भ के अंदर जो होता है उसके बारे में। तो ये 3 लेवल की कवरिंग के बात की जा रही है। तो ये 3 तरह की कवरिंग होती है। तो एक्चुअली तो कुछ लोग जो हैं वो समझो तो मतलब इतने ज्यादा मतलब कवर्ड है कि वो एम्ब्रियो जो है गर्भ में जैसे फंसा हुआ उसके तरफ बहुत ही मतलब ज्यादा, मतलब वो आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कवर्ड है, उनकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा कवर्ड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने हार्डकोर एथीस्ट लोग, हार्डकोर साइंटिस्ट लोग, वो स्टार्ट ही करते हैं कि सिंस आई एम अ साइंटिस्ट आई कैन नॉट बिलीव इन गॉड। मतलब पहला ही उनका स्टार्ट ही होता है कि भगवान में बिलीव ही नहीं कर सकते। बट वो अगर आप देखो तो वो मूर्खता है एक्चुअली, क्योंकि आप पहले से ही पॉसिबिलिटी जो है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, मैं इंटेलिजेंट हूँ तो एज अ साइंटिस्ट मुझे तो समझना चाहिए कि हाँ दोनों कुछ पॉसिबल हो सकता है, भगवान हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। लेकिन वो स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि मैं साइंटिस्ट हूँ तो मैं विश्वास कर ही नहीं सकता हूँ कि भगवान है। पहला ही उनका ये होता है। तो तो वो एक्चुअली कन्विंस ही नहीं है, एक्चुअली वो ट्रेंड है कि भगवान है ही नहीं। तो ऐसे लोग जो पूरी तरह से ट्रेंड है कि भगवान है ही नहीं, पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से कन्विंस है, तो उनको बताना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए इवन जब ये मैसेज भगवत गीता का, भगवान का जो मैसेज भी है, वो ऐसे लोगों को देना बहुत ही मुश्किल है। बट यहाँ पे आ रहा है फिर दूसरे 2 तरह की कवरिंग की बात भी आ रही है, जो मिरर और डस्ट की तरह है, जिसका वो भी कवरिंग है, डस्ट लग गया है बट डस्ट को साफ किया जा सकता है, वो एटलीस्ट उससे बेटर है। डस्ट को साफ करना ज़्यादा नहीं, बट एम्ब्रियो को वूम से निकालना है, वो टाइम लगेगा, उसको उसका टाइम आएगा तभी वो उसको बताया जा सकता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप कवरिंग। बट जो मिरर के ऊपर धूल लगी हुई है उसको साफ किया जा सकता है। फिर दूसरा फायर और स्मोक का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज के ऊपर भी उनके इच्छाओं की धूल लगी हुई थी। तो भगवान को चाह रहे थे बट उनको अपनी इच्छा की प्राप्ति करनी थी। तो लेकिन क्या वो जैसे भगवान का उन्होंने पाने की कोशिश की, ध्रुव महाराज की स्टोरी आप लोगों ने सुनी, ध्रुव जो परीक्षित महाराज, सॉरी अपना भागवतम में आती है उनकी स्टोरी। तो ध्रुव महाराज जो है वो 5 साल के बच्चे होते हैं और वो उनके पिता उनको गोद में नहीं बिठाते हैं, तो इसके लिए उनको बुरा लगता है। उनकी सौतेली माँ उनको
नहीं बैठने देती है, बोलती है कि तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तभी तुमको बैठने को मिलेगा। तो वो उनको बहुत बुरा लगता है और उनको क्षत्रिय थे, उनको बहुत गुस्सा आया वो, और उनको पता चला कि भगवान विष्णु के पास जाएंगे तो वही इच्छा पूरी कर पाएंगे। तो उनके पास इच्छा थी कि वो क्या बोलते हैं, उनको ब्रह्मा से भी बड़ा उनको साम्राज्य चाहिए था। तो वो उस इच्छा से वो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करना चाह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने भक्ति की तो उनके जो इच्छा की जो धूली लगी हुई थी वो भगवान को देखते ही खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कड़ी तपस्या की तो भगवान उनको मिल गए। तो कोई कोई लोग हैं जो हो सकता है अज्ञान है, नहीं पता है उनको, लेकिन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो स्वीकार कर सकते हैं, तो उनको हम बता सकते हैं ज्ञान। तो लेकिन जैसे मैंने बोला कि हमको अपना भी स्तर देखना चाहिए कि हमारा क्या स्तर है। हमको अपने स्तर पर रह के ही संदेश दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने से ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। मतलब जितना हमारा स्तर है, अपना जितना हमारा रियलाइजेशन के स्तर पे हम कर सकते हैं। तो ये जो नॉलेज, ये जो भगवान बता रहे हैं एक्चुअली, ये उसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, युद्ध विदुर थे, ठीक है ना। विदुर जो है वो खुद धर्म थे, वो धर्मराज थे वो। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो किसको दिया? धृतराष्ट्र को दिया था। मतलब अज्ञानी के केस में, वो भी अज्ञानी थे ना, वो भी मतलब वो भी बहुत ही आसक्त थे, लेकिन वो हमेशा लगे रहे थे धृतराष्ट्र को ये ज्ञान देने के लिए। लेकिन दुर्योधन को नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि दुर्योधन जो थे वो पूरी तरह से कन्विंस थे। वो तो खुद कली के अवतार बोल लो उनको। तो उनको उनको नहीं वो डिस्टर्ब करने गए, लेकिन वो धृतराष्ट्र को डिस्टर्ब करते थे। धृतराष्ट्र को डिस्टर्ब किया उन्होंने, और लास्ट में उन्होंने धृतराष्ट्र ने एक्चुअली लास्ट में जाके उनकी बात मानी भी। तो हमको वही है, हमको देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे, अभी यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक्चुअली मुझे याद है एक बार एक भीमा प्रभु है, हिज ग्रेस भीमा प्रभु, वो बता रहे थे एक्चुअली कि कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक्चुअली हमको देखना चाहिए कि कौन, मतलब कच्चा आम पक्का आम करके बता रहे थे कि कौन है जो कच्चे आम है, मतलब वो पक सकते हैं, मतलब किसमें पोटेंशियल है, मतलब थोड़ा सा हमको अपना वो यूज करना चाहिए। तो एक तरह से वो ठीक है, वो तो हमारा वो होना चाहिए। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आप देखो तो आप बाहर जाओ तो आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, सारे के सारे एक्चुअली नास्तिक, बहुत सारे। वो आपके ईगो को ट्रैश करेंगे, आपको बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हम उनको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं एक तरह से। देखो, डिस्टर्ब करने जाते हैं एक तरह से, क्योंकि वो अपने दुनिया में रमे हुए हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा क्या बोलते हैं, काइंड होते हैं, दयालु होते हैं। तो वो दया क्यों है एक्चुअली? तो दया इसके लिए क्योंकि वो दया जो स्वाभाविक रूप से आ जाती है एक्चुअली। आपको जब ये भगवान का ज्ञान मिलेगा, भगवान का प्रेम थोड़ा सा भी आपको मिलेगा, तो आप बाय डिफॉल्ट आपको लगेगा कि ये तो देना ही चाहिए मुझे। तो वो, और भले ही भगवान उसको मना कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसके, वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं वो सारा रिस्क लेने तक को तैयार है। तो कैसे भक्त है ऐसे? ये ऐसे भक्त हैं जैसे प्रभुपाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में जाओ, अमेरिका में प्रीचिंग करना या फिर कोई मुस्लिम कंट्री में प्रीचिंग करना इतना आसान नहीं। वहां पे जान पे भी रिस्क आ जाती है। लेकिन क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रेम है भगवान के लिए, और वो प्रेम जो है वो देना चाहते हैं लोगों को। तो वो जो जिसको भी वो प्रेम रहेगा भगवान का, वो वही देना चाहेगा ना। वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे यही एक उपाय, यही एक रेमेडी है, वही एक उपचार है। इस कारण से लोग जो है दुखी है, तो वो हेल्प करना चाहता है। तो इसके लिए यहाँ पे इस्कॉन में भी आप देखो तो लोग जो है वो बाहर जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो भले ही लोग सोए हुए हैं, लेकिन जबरदस्ती, वो जानते हैं कि हो सकता है वो गाली देंगे, कुछ भी बोलेंगे, हो सकता है मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, एक्चुअली किसी को भी आप अप्रोच कर सकते हो। ये नहीं कि ये बुक सिर्फ हिंदू के लिए। हो सकता है वो हिंदू से बेटर भक्त बन जाए वो मुस्लिम और क्रिश्चियन जो भी है।
तो पात्रता नहीं देख रहे। चैतन्य महाप्रभु क्या खुद क्या बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु खुद भक्त बन के आए थे एक्चुअली, भक्त का रोल किया उन्होंने, तो वो खुद क्या बोल रहे हैं? हमारा आज्ञा है गुरु बनो तारो ये देश, तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कि मेरी आज्ञा से गुरु बनो और जिसको भी देखो उसको ये उपदेश दो, कृष्ण का उपदेश दो, क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं। तो हमें ऑब्वियसली हमें हो सकता है कोई योग्यता नहीं है कि हम ये मैसेज को दे सके, बट बुक तो हम दे सकते हैं। हमें इतनी तो, अगर हमको ये समझ में आ गया कि ये मैसेज जो है, ये संदेश जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है ये क्रांति ला सकती है कि लोगों के जीवन में, अगर आपको ऐसा फील होगा कि ये सच में क्रांतिकारी मैसेज है, ये जीवन बदल सकती है, तो आप बाध्य हो जाओगे कि नहीं, भले ही भगवान बोल रहे हैं ऐसा, और वो भी भगवान भले ही बोल रहे हैं बट एक्चुअली भगवान चाहते हैं, क्योंकि भगवान, अब भगवत गीता में लास्ट में देखोगे 18 चैप्टर में आता है कि सबसे प्रिय उनको भक्त कौन है? जो इस मैसेज को दूसरों को बताता है। तो थोड़ी से कॉन्ट्राडिक्टरी लेवल पे बात भगवान कर रहे हैं, तो हमको एक्चुअली अभिप्राय समझना चाहिए कि भगवान का उद्देश्य क्या है। लिटरली हम हर एक चीज को नहीं लेके बैठ सकते। तो ऑल्दो यहाँ पे, तो इस तरह से लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि अरे, तो लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि अरे तुम तो भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम बोल रहे हो भगवत गीता यथारूप और तुम तो भगवान की बात को भी नहीं मान रहे हो। जो मूर्ख लोग हैं ऐसा बोल सकते हैं। वो बोल देंगे, जो मान लो जो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, वो बोल देंगे अरे तुम्हारे भगवत गीता, उनको पहली बात तो पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। पढ़ेंगे पहले तब तो जानेंगे। यही तो दुविधा है एक्चुअली। जिनको जिनको जानना चाहिए उनको पता नहीं है, जिनको पता है वो, लेकिन एनीवे अगर जिनको नहीं भी पता है, जिनको पता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए नहीं है। आप हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हमको तो ऑलरेडी जाने चाहिए, हम तो ऑलरेडी जान रहे हैं, हमको डिस्टर्ब करने के, हम तो ऑलरेडी समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन नहीं, हम जब भक्ति कर रहे हैं तो ड्यूरिंग आवर साधना ऑल्सो हमको कोई ना कोई एक्चुअली हमारे हमारे ऊपर होना चाहिए जो हमको डिस्टर्ब करे एक्चुअली। क्योंकि अगर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको कोई, तो आप जब तक वो डिस्टर्बेंस लेने के लिए तैयार नहीं रहोगे तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। क्योंकि आप हमेशा उसी स्तर पे रह बने रह जाओगे। आपको लगेगा कि मैं तो सही सही जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सच में आपका शुभचिंतक है तो वो एक्चुअली आपको डिस्टर्ब करेगा कि तुम मूर्ख हो। एक्चुअली शुड टेल यू, जैसे सर्जन है, उसका काम है कि वो बीमारी को, कैंसर है तो उसको निकालना। अगर वो नहीं कर रहा है, मान लो कोई डॉक्टर है, अगर वो नहीं अपने ड्यूटी का पालन कर रहा है तो एक्चुअली वो नॉन वायलेंस कर रहा है। अगर कोई पुलिस है या बॉर्डर पे सिपाही है, सोल्जर है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वो वायलेंस, अगर वायलेंस में एंगेज नहीं है तो वो नॉन वायलेंस है। तो सिमिलरली एक्चुअली, तो साधु जो है एक्चुअली, साधु का काम ही एक्चुअली डिस्टर्ब करना है। साधु अगर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि हमको हंसना चाहिए, हंसने से हमारा सारा स्ट्रेस कम हो जाएगा और हमेशा एक स्माइल रहेगा उनके फेस पे, और ना वो खुद एक्चुअली बॉदर करता है कि उस सामने वाले से उसको मतलब नहीं है, नहीं, वो अपनी लाइफ में मस्त है, वो सामने वाला भी अपनी लाइफ में मस्त है। वो सोच रहा है कि चलो अच्छा है मुझे गुरु मिल गया, डिस्टर्ब नहीं करता, कितने अच्छे हैं। बट एक्चुअली जो आपके लिए कंसर्न रहेगा वही आपको डिस्टर्ब करेगा। जैसे माता पिता है जो बार बार बच्चों को पॉइंट आउट करते रहे, ये गलत है, ये गलत है, बच्चा भी इरिटेट होता रहता है, अरे यार कितना डिस्टर्ब करता है। मतलब टू द पॉइंट ऑफ, क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन बच्चे को। बट बच्चे को समझाना पड़ेगा। तो वैसे ही साधु का काम है एक्चुअली डिस्टर्ब करना। तो हमको एक्चुअली डिस्टर्बेंस लेने के लिए तैयार होना चाहिए, देन ओनली हमारा प्रोग्रेस हो सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक्चुअली ये जो डायलेमा ऑफ डिस्टर्बिंग पीपल है एक्चुअली, तो डिस्टर्ब करना चाहिए, बट देन अगेन वी हैव टू सी, वी हैव, ऐसा नहीं कि डिस्टर्बेंस करने को बोल दिया तो वो पर्सनल नहीं, पर्सनल एस्पेक्ट है उसको भूल जाओ आप। हमको कंसिडरेट भी होना चाहिए, हर एक की अलग अलग इमोशनल स्टैंडिंग है, उसके हिसाब से देखते हुए कोई आ रहा है तो उसको, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उसको उसके हिसाब से डिस्टर्ब। बट हाँ, हमको जो देने वाला डिस्टर्ब करने वाला है उसको देखना चाहिए, जो रिसीव करने वाला डिस्टर्बेंस उसको भी देखना चाहिए कि हाँ, सामने वाला अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके पीछे कुछ तो रीजन है। जैसे मैंने बोला, अगर कोई किसी को मारने जा रहा है, अगर उसको कोई चिल्ला रहा है, गाली दे के बुला रहा है, अरे मैं उठ नहीं देख रहा, गधा तुम्हें देखो मारने आया, तो
वो वो भी सोचेगा ना, अरे क्यों चिल्ला रहा है मुझे, तो वो थैंकफुल रहेगा उसके लिए। तो वैसे ही अगर कोई आपको, जैसे भगवान यहाँ पे गाली दे रहे हैं, एक्चुअली ही इज हिमसेल्फ यूजिंग खुद गाली दे रहे हैं, तो गाली किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि बीमारी को ठीक करना है। तो अगर कोई आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो आपको हमेशा इस तरह से मत नहीं लेना चाहिए कि अरे वो कितना रूड है, किस तरह से बात कर रहा है। हो सकता है उसकी इंटेंशन आपको सच में करेक्ट करने की कई बार ऐसा होता है कि लोग आउट ऑफ प्राइड लोग एक दूसरे को, सामने को छोटा समझते हुए डांट रहे हैं, बट नॉट ऑलवेज द केस। जो एक इस संदर्भ में एक और श्लोक है, सॉरी मैं यहाँ पे हाँ उस चीज को बताता हूँ। ईश्वरे तद तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट और सेकंड क्लास डिवोटी है, मतलब जो सेकंड क्लास मतलब थोड़े जो मच्योर्ड है, मध्यम अधिकारी, वो offers his love to the supreme personality of Godhead, is a sincere friend to all the devotees of the Lord। जो भी भगवान के भक्त हैं सारे के प्रति वो सबके फ्रेंड है, मैत्री भाव रखते हैं। shows mercy to the ignorant people who are innocent। जो इनोसेंट है उनको मर्सी दया दिखाते हैं। हो सकता है उनको पता नहीं है तो उनको कैसे उनको हैंडल करना है वो दया दिखाते हैं, बट जो पूरी तरह से एनवियस है, disregards those who are envious of the supreme personality। तो पूरी तरह से एनवियस है, जैसे मैंने बताया विदुर का एग्जांपल दिया, धृतराष्ट्र को तो उन्होंने दिया नॉलेज, बट दुर्योधन को नहीं दिया, क्योंकि दुर्योधन पूरी तरह से कन्विंस था। वो वो उसको रिप्रेजेंट ही, अधर्म को रिप्रेजेंट ही कर रहा था, तो उसको वो नहीं समझाने जा रहे थे। तो हमको भी एक्चुअली थोड़ा सा एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे तो आपको उतनी बुद्धि यूज कर, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को समझाने जाओगे तो आपकी ही वो आपका ही बंटा तैयार कर देंगे। तो इसके लिए भगवान एक तरह से, अगर वो इस तरह का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं भगवान की, नहीं ठीक है सबको डिस्टर्ब करो, तब तो आप उसको लिटरली ले लेते हैं और सबको आप चले जाते हैं डिस्टर्ब करने और आपका बंटा तैयार हो जाता है। तो नहीं, तो लेकिन भगवान यहाँ पे इंटेलिजेंटली बोल रहे हैं कि नहीं, कि जो ज़्यादा अनसेटल मत करो, ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, लेकिन उसका मतलब हमको समझना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। डिस्टर्ब करना है हमको, बट हमको हमारे लिमिट में रहे। जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपने बुद्धि का नहीं यूज करो, आप जस्ट अपनी बुद्धि का ये यूज करो कि हम कैसे बुक बंदे को मिल जाए और वो पढ़े और उसके जीवन बदल जाए। वो टारगेट होना चाहिए। तो किसी को कोई इसमें कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? एंड है मतलब किस सेंस में एंड है? डिस्टर्ब करने का डिस्टर्ब करने का एंड कैसे पता चलेगा? जब तक आप खुद डिस्टर्ब हो, आपको समझ जाओ कि आपको भी चाहिए डिस्टर्बेंस और दूसरों को भी चाहिए ऑब्वियसली। तो पॉइंट है कि हम खुद भी डिस्टर्ब, हम मतलब खुद भी उस लेवल पे नहीं, हमको खुद भी डिस्टर्बेंस चाहिए एक्चुअली। तो हमको भी डिस्टर्बेंस लेने के लिए तैयार होना चाहिए। तो डिस्टर्ब क्यों? क्योंकि कोई ऐसा जो हमको, विजय शास्त्र पढ़ोगे आप, आपकी वैसी चेतना नहीं रहेगी तो आपको लगेगा अरे क्या आप बोल रहे हैं, मतलब मजा नहीं आ रहा, तो मतलब नहीं, बट हमको एक्चुअली ये मेडिसिन की तरह एटलीस्ट लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ा ये जो श्लोक था, ये कि मुंह गधे हैं, मतलब वी कैन सी एक्चुअली हम कितने आसक्त होते हैं फैमिली से। बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप फैमिली को प्रेम करना छोड़ दो, बट प्रिंसिपल प्रिंसिपल समझना है एक्चुअली यहाँ पे, कि सिद्धांत समझना है कि एक्चुअली शरीर के स्तर पर आप हम हैं तो एक्चुअली हम मूर्ख हैं, हम गधे हैं। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया तेल और पानी का, तो आत्मा का शरीर से कोई संबंध ही नहीं है एक्चुअली। तो जब तक हमको एहसास ही नहीं होगा कि हम आत्मा है, तो आत्मा है तो फिर आत्मा की रियलिटी क्या है, अस्तित्व क्या है? आत्मा है तो आत्मा भगवान का अंश है, भगवान से रिलेटेड है वो। और जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तब तक उसको सुख जो वो खोज रहा है उसको नहीं मिलने वाला है, वो कितना भी प्रयास कर ले। तो ये सब चीज़ें हमको समझनी होगी। तो हमको ये बार बार हमको सुनना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, वो बार बार प्रभुपाद ये चीज़ रिपीट करते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो रिसेंटली मैं सुन रहा था, वो एक छोटा सा शॉर्ट था कदम कानन महाराज को, उसमें बोल रहे थे प्रभुपाद सेड दिस टू द पॉइंट ऑफ, क्या बोलते हैं, इरिटेटिंग यू
कि अरे वहाँ पता चल गया वी आर नॉट दिस बॉडी, बट नो, वी हैव टू रियलाइज दिस, एंड नॉट ओनली कि वी आर नॉट दिस बॉडी, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो वी हैव टू रियलाइज कि वी आर एक्चुअली सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। सिर्फ आत्मा है वहां पे कहानी खत्म नहीं हो रही है। हमको ये समझना पड़ेगा कि हम आत्मा नहीं है, हम आत्मा तो है ही, हम भगवान के जीवेरा स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के दास है। तो यहाँ पे स्टोरी एक्चुअली यहाँ पे समझने पे कि हम आत्मा है, उसके बाद भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, अलग अलग तरह के सिद्धांत आ जाते हैं। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि आप खुद भगवान बन सकते हो, यू कैन बिकम गॉड। तो वो भी एक बीमारी है, वो भी सुनने के लिए, नहीं तुम भगवान नहीं हो, तुम मूर्ख हो एक्चुअली। वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, मायावादी भाष्य सुन ले स्थाई भाई सर्वनाश, तो ये हमको बार बार रिमाइंड, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ना। अरे यहाँ पे हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो भगवान नहीं बन पा रहे हैं, हम एंजॉयमेंट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम अगर भगवान जैसा बन जाए, भगवान के मतलब जो भी उनका कॉन्सेप्शन है कि हम उनमें मर्ज हो जाए, हम मतलब भगवान की सेवा उनको नहीं एक्सेप्ट करनी है, भगवान की सेवा जो है वो नहीं एक्सेप्ट करनी है, बाकी सब उनको एक्सेप्ट करना है। तो वो भी एक तरह से वो भी एक बीमारी है। तो हमको कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला होना चाहिए हमको। जैसे मैं खुद का भी एग्जांपल बताता हूँ, कई बार हमको पता नहीं होता है, हमको लगता है कि अरे चलो हम तो बहुत साल से भक्ति कर रहे हैं, सो कॉल्ड हम तो अभी बहुत कुछ पता है, हमको अपने आप को समझने लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं। बट कोई सामने वाला जब हमको आईना दिखाता है कि तुम्हारी क्या किधर स्टैंड कर रहे हो, देन हमारी सारी जो हमारी हेकड़ी निकल जाती है। तो दैट इज वेरी मच, दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल टू एक्सेप्ट अ गुरु एक्चुअली। और गुरु का काम है एक्चुअली कि ही शोज यू दैट मिरर, जिसमें कि आप देख सकोगे आप कहाँ स्टैंड कर सकते हो। तो ये एक्चुअली उसके लिए ही है एक्चुअली। तो तो आप लोग तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं डिस्टर्ब होने के लिए तैयार हो, अब तो ऑलरेडी आप लोग पायस हिंदूज हो, सो बट कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग बाहर भटक रहे हैं जिनको नहीं डिस्टर्ब होना। जैसे मैंने बताया अभी रिसेंटली मेरा एक ऑफिस में एक फ्रेंड था, वो ऐसे बोल रहा था कि मैं भी आस्तिक हूँ भाई, ऐसे क्या है, मैं भी आस्तिक हूँ, तुम ही सिर्फ मान रहे हो क्या, मतलब मुझे ऑब्वियसली मुझे नहीं बोल रहा था, बट किसी और के बारे में बोल रहा था यार, मुझे डिस्टर्ब किसी और, आई थिंक वो कौन है अपना, ब्रह्म कुमारी, वो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, डिस्टर्ब करने में मुझे एक बात आया है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रह्म कुमारी ले लो, आर्ट ऑफ लिविंग ले लो, बहुत सारे हैं। तो हमको ये भी बताना होगा कि तुम नॉनसेंस हो एक्चुअली, ये सब क्या, वो सब नॉनसेंस, हमको ये भी बताना होगा क्या नॉनसेंस है और क्या सेंसिबल है एक्चुअली। तो नहीं हम बताएंगे तो वो लोग उनको उठा के ले जाएंगे, उनका फिर कुछ नहीं होगा, वो जन्म जन्म तक फिर वो चलते रहेंगे। एंड दिस इज नॉट एक्चुअली आउट ऑफ प्राइड, एक्चुअली वी आर सेइंग दिस बिकॉज वी आर सेइंग दिस बिकॉज वी, हम क्या बोलते हैं शास्त्रों के बेसिस पे ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ ईगो और प्राइड बोल रहे हैं। तो हमको ये भी, और आप एग्जामिन कर लो, हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ हम सच है, तुम एग्जामिन कर लो ना, तुम शास्त्र पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, अगर शास्त्र के हिसाब से अगर नहीं बोल रहे तो ठीक है, तुम रिजेक्ट करो, जाओ दूसरी जगह। लेकिन अगर तुम पहले एग्जामिन करो, देखो। तो हमको ये भी एक पार्ट है डिस्टर्ब करने में कि क्या गलत है वो भी बताना चाहिए, कि बहुत सारे लोग गलत मैसेज प्रचार कर रहे हैं और लोग उसको सुन रहे हैं और भ्रम में जी रहे हैं। तो वो भी एक फर्ज बनता है, इसलिए प्रभुपाद वाज सो हैवी अगेंस्ट ऑल दीज नॉनसेंस पीपल। कई बार तो वो क्या बोलते हैं, एक बार तो उनका एक, अच्छा 2-3 मिनट है मेरे पास। एक बार क्या हुआ था, हाँ एक किसी ने उनको चैलेंज कर दिया कि आई एम गॉड, वो लेक्चर दे रहे थे ऐसे ही, और किसी ने बोल दिया आई एम गॉड। प्रभुपाद क्लियरली उसको बोलते हैं, गुस्सा के उसको बोलते हैं, एंग्री होके, यू आर नॉट गॉड, यू आर डॉग। प्रभुपाद ने बोला उसको ऐसे, प्रभुपाद चाहते तो भाई डिस्टर्ब नहीं करते भाई, पोलाइटली उसको बिठाते, अच्छा तुम ऐसा समझते हो, हाँ चलो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हाँ तो लेकिन नहीं, कभी कभी यू हैव टू डिस्टर्ब। और एक बार और एक बताता, एक था, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, स्टडी करते थे, रिलीजन स्टडी कर रहे थे, हिंदू रिलीजन वगैरह स्टडी कर रहे थे वो। तो अ, प्रभुपाद के साथ स्वरूप दामोदर प्रभु थे, उनके डिसाइपल थे। तो वो जो थे
वो उन्होंने बोला कि उनसे पूछा कि क्या है आपके हिंदुइज्म के बारे में, आपका क्या क्या जानते हैं आप। तो वो ऐसे बोलता है कि आई थिंक आई डोंट नो मच, आई डोंट नो एनीथिंग। और वो पढ़ाते थे एक्चुअली, एंड ही डजंट हैव, एंड ही एडमिटेड कि उसको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं। तो उन्होंने स्वरूप दाम, उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनसे उनसे पूछा तुमको क्या लगता है ऐसे लोग, ये कैसे लोग हैं, मतलब किस कैटेगरी में है। तो वो भी समझ गए कि क्या हिंट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया इज अ चीटर प्रभुपाद। तो फिर आगे बात हुई तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया कि अरे इस तरह से कैसे बात कर रहे हो। फिर बाद में एक्चुअली वो जो बंदा था एक्चुअली वो वल्लभ संप्रदाय से आई थिंक बिलोंग करता था। एंड उसको छोड़ के वो कुछ और उल्टा पुल्टा अपना फिलोसफी पढ़ रहा था और पढ़ा रहा था जो भी। बट उसको बाद में उसको क्या बोलते हैं, ये रियलाइज्ड, और वो फिर अपने जो रूट्स में गया हो। तो पॉइंट है, हो सकता है जिस मोमेंट में आप किसी को डिस्टर्ब करो, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगे, लेकिन बाद में हो सकता है उस बारे में सोच सकता है। तो ये है, तो डिस्टर्ब करना कभी कभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कंसिडरेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत देखना चाहिए, बट हाँ देर इज स्कोप ऑफ डिस्टर्बिंग। तो भगवान ने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हाँ जाओ, जिसको भी देख रहे हो बोलो। प्रभुपाद ने बोल दिया कि हाँ, भक्त जो होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, वी शुड एक्चुअली डिस्टर्ब पीपल, डिस्टर्ब ऑल दीज एनवियस पीपल। सो ठीक है, मैं एंड करता हूँ। किसी को कुछ फर्दर क्वेश्चन, कमेंट्स? ओके। हाँ हाँ। भैंस बोल देना चाहिए था नहीं। गो खरा। हाँ लेकिन गाय को ऑब्वियसली पूजनीय मानते हैं, बट गाय को अगर आप देखो तो बहुत ही, गाय हम बोलते हैं ना, अरे बहुत ही गाय है, मतलब सब मान लेती है, मतलब उसको कुछ पता नहीं, बुद्धि नहीं है, मतलब उस सेंस में समझो कि वो मूर्ख के सेंस में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ऑब्वियसली तो गाय को तो इनफैक्ट ये बोलते हैं कि जानवर भी नहीं है, गाय का अलग श्रेणी है। हाँ, तो उस सेंस में थोड़ा सा चेंज करवा देते हैं इसको। बोलते हैं, ये किसने बोला था, ये आई थिंक ये, हाँ ये कहाँ पे बोल रहे हैं बताता हूँ, ये एक्चुअली ये ऋषि मुनि लोग जब ये यहाँ पे मिल रहे हैं अपने, अपना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सन अमावस्या होता है, और वो सारे जो यदुवंशी लोग इकट्ठा हुए थे उस स्नान करने के लिए, तीर्थ में स्नान करने के, तो वहां पे जो वसुदेव और देवकी, उनको ये ऋषि मुनि लोग जो थे उनको ये नॉलेज दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये वहां पे भी वो ये बैठ के ये नहीं बता रहे भगवान के बारे में, यहाँ पे कितना मतलब उनको इस लेवल का ज्ञान दे रहे हैं, इस तरह का ज्ञान कि ऐसे लोग मूर्ख हरकत है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये सब समझना कितना जरूरी है एक्चुअली। वो भी वहां पे इस तरह का बात बोल रहे हैं। सो या, so we should actually try to disturb ourselves by taking trouble to understand these things, not, we should not live in illusion कि हमारी जो लाइफ है, संसारिक लाइफ, वही सब कुछ है, हम खुश हैं, सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा बहुत 2 माला 4 माला 5 माला 16 माला भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, बाकी सब कुछ तो ठीक है, that story doesn't end there. We should actually keep on disturbing ourselves by giving us this heavy doses of स्क्रिप्चर्स का जो है, और महामंत्र, महामंत्र इज ऑब्वियसली इट्स नॉट डिस्टर्बिंग, वो डिस्टर्बिंग लगता है कभी कभी, बर्डन लगता है लोगों को क्या, मुझे भी कभी कभी लगता है कि अरे 16 माला चैंट करना है यार, और अगर सुबह में नहीं कर पाओ तो बहुत ही बर्डन लगता है, अरे यार माला रह गया, अभी कैसे कंप्लीट करें। बट नहीं, हमको वो लेना है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर आप अपना भला चाहते हो तो करो, अदरवाइज ऑप्शन इज ओपन फॉर यू। पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम जननी जठरी शयनम। ठीक है, विद दिस आई लैंड हियर। थैंक यू एवरीवन फॉर, प्रभु जी, कभी-कभी कुछ लोग को डिस्टर्ब करते तो वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद बात भी करना बंद कर देते हैं या तो सुनते नहीं किसी तो क्या करेंगे आप? की। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? छोड़ दो उनको, और क्या, आप अपना करो,
आपने ठेका लेके थोड़ी रखा है। छोड़ दो आप, आपके बस का नहीं है, बस इतना समझ लेना। आप अगर दूसरा दूसरा ये भी आप प्रीचिंग करने जाओगे तो आप खुद पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। कभी कभी वो भी करने के लिए आप अपने आप को ट्राई करने के लिए भी चले जाओ, भिड़ जाओ कि मुझे पता चलेगा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। वो ऐसी ऐसी रीजनिंग देंगे आपको, लगा अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अभी इसका क्या जवाब दूँ। फिर आप जाओगे किसी के पूछने जाओगे, अरे ऐसा ऐसा बोला था, इसका क्या जवाब होगा। तो या तो आपको हमको अगर आपको लड़ना है, आपको बताना है, कन्विंस कराना है, तो आपको तैयार करना होगा अपने आप। बट ना, वो भी हमारा एम नहीं होना चाहिए एक्चुअली कि हमको बहुत बड़ा प्रचारक बनना है, हमको लोगों को कन्विंस कराना है। दैट शुड नॉट बी आवर एम एक्चुअली। वी शुड बी हैप्पी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ अ सर्वेंट। और वी शुड, जो भी हम एक्चुअली कर रहे हैं, वी शुड डू विथ एटीट्यूड ऑफ सर्वेंट एक्चुअली। इट्स नॉट दैट कि वी शुड एम फॉर कि हमको बहुत बड़ा ये बनना है प्रचारक और हम लोगों को कन्विंस करा देंगे। देन तो आपका ईगो क्लैश क्रैश करेंगे ही करेंगे। आप कर लो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन लोग करने जाते हैं, एक बुक जहाँ 4 बुक बिक गया, थोड़ा सा बिक गया, मतलब सारे बुक ले लिया लोगों ने, तुरंत से प्राउड आ जाता है कि अरे मैंने 10 लोगों को दे दिया। उसके बाद आप अहम आ गया, एक भी बुक नहीं जाएगा आपसे। उसके बाद जब आप वापस आते हो लेवल पे, फिर वापस जब प्रे करोगे कृष्णा सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर रुक जाएगा। तुम आपने मुझे भेजा है तो निकलवा दो बुक यार, मुझसे थोड़ी तो इज्जत रख लो यार। निकला हूँ यार, लोग पूछेंगे कि कितना बुक गया, तो मैं क्या बताऊंगा। थोड़ी इज्जत रख लो मेरी। तो ठीक है, तो हमको समझना चाहिए सारे एंगल से कि क्या होना है क्या नहीं करना है। वी शुड बी रेडी टू बी डिस्टर्ब या। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So we'd all like to thank His Grace Asya Prabhu for giving such a wonderful class. The loudly chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Prasadam is in Vrindavan Hall, which is in Kashmir. Request to collect coupon and then only go for Prasadam.